جو لڑکی کل کشمیر سے فرار ہوئی تھی بالآخر اسے پکڑ لیا ہے. یہ وہ لڑکا ہے جس نے اس لڑکی کو بھگایا تھا. اس کے آپ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھی دیکھ سکتے ہیں. کپوارہ پولیس ساتھ میں ہے. ویل ڈن ایس ایس پی کپوارہ, ویل ڈن ڈی ایس پی کپوارہ. اور میں مبارکباد پیش کروں گا کپوارہ پولیس کو. وجے پور سے لڑکی ٹریس کی ہے. اسی انووا گاڑی میں ہے لڑکی. یہ جو انووا گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں, ہم لڑکی کا چہرہ نہیں دکھانا چاہیں گے ایز پر اوور میڈیا پالیسیز, کیونکہ ہم یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیں گے معاشرے میں, سماج میں. لیکن یہ اس لڑکی کا ہسبینڈ ہے. یہ وہ لڑکا ہے جو بھگا کر وہاں سے لایا ہے. یہ پولیس نے یہاں پہ اسے جو ہے وہ ہتھ کڑیاں ڈال کر گرفتار کیا ہوا ہے. اور یہ اس لڑکی کا ہسبینڈ ہے. کیا کہنا چاہیں گے جناب آپ؟ سر میں شکر گزار ہوں میڈیا والوں کا, سوشل میڈیا کا, آئی بی این نیٹ ورک کا, سر آپ کے ڈیلی تسکین کا, سر, اور جو علی بابا اور پولیس کا اور عوام کا جو ہمارے ساتھ رہے, جو ہمارے پڑوسی ہے انہوں نے ساتھ دیا. پولیس نے بھی ہمیں بہت مدد کیا. کہاں سے آپ نے پکڑے؟ یہ ہم نے وجے پور ریلوے اسٹیشن کے پاس پکڑے. یہ کہاں جا رہے تھے؟ یہ جا رہے تھے بس اتنا ہی تک پتہ نہیں. اچھا, وجے پور میں ڈیرا تھا. تو وجے پور میں تھا ان کو. ہاں بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے غلط کیا ہے؟ ویسے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. مگر پیار کرنا گناہ نہیں. 3 بچوں کی ماں ہے تو یہ گناہ نہیں ہے؟ مجھے 15 سال سے ہے. 15 سال سے ریلیشن ہے. اگر یہ عورت کے ساتھ آپ کو 15 سال سے ریلیشن ہے تو پھر شادی کیسے کی ہے اس کے ساتھ؟ عورت کو پہلے پوچھو نا, جیسے کہ عورت بتائے گی نا میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ غلط تو کیا آپ نے, کشمیر سے بھگا کے لائی 3 بچوں کی ماں. یہ کون سا انصاف ہے, پیار ہے؟ میرے بھائی میں نے کسی کو زبردستی نہیں لایا ہے. لڑکی اپنی مرضی سے آئی؟ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے تب میں نے لایا ہے. 15 سال سے ہو؟ 15 سال سے ریلیشن میں ہوں. یہ لڑکی کا ہسبینڈ ہے, آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہو؟ جی میں اس کے سامنے کہہ رہا ہوں. کیا کام کرتے ہو آپ؟ میں شال سوٹ بیچتا ہوں. کم سے کم آپ کو تو انصاف کرنا تھا انسانیت کے طور کے اوپر. 3 معصوم سے بچے ہیں اس کے. دیکھو بھائی, اس لڑکی پہ بھی انصاف کرنا چاہیے تھا. تو لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی ہوئی ہے؟ اور کیا, جیسے کہ آپ لڑکی کو پوچھ بھی سکتی ہو. کم سے کم ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا. آج آپ کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے, ہاتھوں میں سب چیزیں ہیں. آپ کے سماج کے لوگ بھی پریشان ہیں, ان کے گھر کے لوگ بھی پریشان ہیں. کیا انسانیت نہیں ہے؟ امتیاز تجھ نہیں تھی مثال 15 ورش گمت مس گئی سر 15 سال ہوا ہے ہمارے شادی کو. اس نے اسی ٹائم کیوں نہیں اٹھایا جس ٹائم ہم نے نکاح نہیں پڑا تھا. سچ ہے, جب 15 سال ہو گئے تو تب شادی نہیں. دیکھو میرے بھائی, جب لڑکی نے پوچھا, اس سے بتایا بھی ہے, جیسے کہ لڑکی کہہ رہی ہے میں نے اسے پہلے بھی بتایا ہے, مگر لڑکی نہیں مان رہی. یہ اس نے نہیں مانا ہوگا. وہ تو مجھے اس کے بارے میں نے لڑکی کو کہاں سے انہیں گرفتار کیا ہے؟ وجے پور سے. آپ کپوارہ پولیس سے ہیں؟ کپوارہ پولیس اسٹیشن سے. تو کیا معلوم چلا ہے ابھی تک کی انکوائری میں آپ کو؟ چل رہی ہے, وہ پوچھ رہا چل رہا ہے, وہ ہو جائے گا کمپلیٹ. وہاں پہ تھانے پہ جا کے سب پتہ چلے گا. 3 بچے ہیں بھائی صاحب آپ کے؟ ہاں سر, ہمارے بچے ابھی بھوکے ہیں, انہوں نے ابھی چائے بھی نہیں پیا. تقریباً اس وقت ٹائم ہوا ہے 11:37. رو مت, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. سر 15 سال ہوا ہے ہمارے شادی. یہ بول رہا ہے ہمیں 15 سال سے اس سے پیار ہے. اگر اس کو پیار تھا, جب ہم نے بات کی ان کے گھر والوں سے, میرے پاپا نے یا میرے مسیرے بھائی نے ان کے گھر جا کر لڑکی والوں کے گھر, اس نے کیوں نہیں اس ٹائم 1 سال میں کیوں نہیں اس کو لیا؟ اب 15 سال کے بعد کیوں لے رہا ہے اس کو؟ سر یہ میرے ساتھ ظلم ہے سر, اور آپ ہی انصاف اس میں سر دیکھیے. میں بتا رہا ہوں سچ ہے سر, یہی بتا رہا ہے. یہ 15 سال سے میرے ساتھ رہ رہا ہے. یہ بول رہا ہے سر یہ میں 15 سالوں سے اسی سے ہوں. سر اگر یہ 15 سال سے اسی سے ہوں, اس نے کیوں نہیں 15 سال سے پہلے اس کو لیا, شادی کی؟ اس نے کیوں نہیں مجھے فون کیوں نہیں کیا نکاح سے پہلے؟ مجھے اسی سے کرنا ہے, آپ اس کے ساتھ نکاح مت کراؤ. میں کوئی زبردستی نہیں کیا لڑکی کو, میں نے ایسے ہی نہیں بھگا کے لایا سر. میں نے اس کے ماں باپ سے پوچھ کے لایا ہے سر. میں نے کیا گناہ کیا؟ بھائی میں بھیک مانگتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے مجھے دو گے بھیک؟ ہیں بولو تو میں تمہارے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں. ہیں چھوڑ دو, اس کا گھر مت اجاڑو. بولو میں پاؤں پکڑوں, دونوں ہاتھ سے پکڑوں گا. دیکھو بھائی, میں زبردستی کسی کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتا ہوں. 3 بچے ہیں. دیکھو میرے بھائی, میں کسی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا وقت نہیں ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈالی ہوئی ہے, اس کے 3 بچے ہیں, انصاف کرو اس پہ. میں بھیک مانگنا چاہتا ہوں. اس کے 3 بچے ہیں, چھوڑ دو یار خدا کے لیے. ہاں 1 سال بیچ میں رہا, کیوں اس طریقے کے ہر روز معاملات پیش کرتے ہو؟ میرے بھائی جیسے کہ لڑکی کہے گی نا میں ویسے کرنے کے لیے تیار. لڑکی اگر بولے گی نہیں چھوڑنا تو پھر؟ لڑکی کہے گی نا چھوڑ دو, میں چھوڑ دوں گا. لڑکی کہے گی نہیں تو میں کسی کی پھر بھی انسانیت ہے نا, انسانیت ہے. دیکھو بھائی, اس نے بولا ہے آپ نے دباؤ کیا لڑکی کو. اگر میں دباؤ کروں گا نا لڑکی کو, دیکھو میرے سامنے لڑکی دباؤ میں آئے گی, میرے بغیر تو لڑکی دباؤ میں نہیں آئے گی نا.
मैं कैसा दबाव कर सकता हूँ उससे? मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है कि मैं लड़की को दबा के बोलूँगा मैं आपको मार दूंगा। मैं एक मजदूर बंदा हूँ भाई। आपको हथकड़ियाँ डाल के ला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये मुझे पता है भाई, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। छोड़ दो यार, मैं इंसाफ चाहता हूँ यार, भीख मांगना चाहता हूँ, दुनिया देख रही है। देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं अगर लड़की को छोड़ दूँ, कल उसने अगर जहर खाया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लड़की बोलेगी मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। लड़की कही कि नहीं मुझे नहीं छोड़ो, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। देखो जनाब क्या मुहाशरा है, 3 बच्चों की माँ है, कश्मीर कुपवाड़ा से भाग कर ये जम्मू आए हैं, हस्बैंड सामने है, ये वो मुजरिम है जिसने लड़की को लाया है। मैंने गुस्से में बात की इससे, मैंने आजिज़ी में भी बात की इससे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मामला क्या है। अल्लाह बेहतर करे इन लोगों का, बस मैं यही कहूँगा। ये इंसान का दिल टूटा हुआ है, 3 बच्चे इसके गाड़ी में हैं मासूम से, ये कश्मीर से लेके भागा, कल भागा था, आज इसको जम्मू में विजयपुर में पकड़ा। सब लोगों ने मदद की, कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने मदद की और बाकी लोगों ने मदद की। बोलो मेरी। इसने सर इतना भी इंसानियत के खाते इसने इतना भी नहीं सोचा था, इतना दरिंदा था कि इन बच्चों को एग्ज़ाम था, इसने ऐसे ही उनको उठा के लाया सर। गलत किया है इसने, ये तो घर से निकल गया था काम पे। मैं तो मानता हूँ कि इसने गलत किया है, सही नहीं किया है, मैं इससे कभी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे 15 सालों से सर, ठीक है मैं मान रहा हूँ सर इसके बाद ये, मगर इसने 15 साल से पहले जब शादी नहीं किया था हमने, जब निकाह नहीं पड़ा था, बीच में 1 साल का गैप रहा था, उसने क्यों नहीं फ़ोन किया था मेरे को? इसमें क्या मैंने इसको आपने अपनी बीवी को नहीं पूछा कि क्या मसला? पूछा इसने नहीं, कभी नहीं बताया 15 सालों में। बीवी आपकी नहीं, मुझे अपने बीवी पे कोई शक ही नहीं था, हम अच्छी तरह से रहते थे। तो फिर आपकी बीवी कैसे भागी अगर शक नहीं था? सर मैं घर से निकल गया सुबह काम के लिए, तो वो पीछे से भाग गई? वो पीछे से भाग गई। इसने मतलब बीवी आपकी में भी तो फॉल्ट है ना? इसने गलती तो है। 3 कॉल किया था। मैं एक्चुअली बॉर्डर पे जा रहा था, मैं इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था उधर, मैं आर्मी के साथ काम कर रहा था उधर सर, एस्कॉन के बिजली का काम कर रहा हूँ सर। सर इसने 3 कॉल किया था, मैंने इस टाइम सुना नहीं, रिसीव नहीं किया था सर। बीवी से आपने पूछा ज़बरदस्ती इसने लाया कि खुद आई हो? सर अभी नहीं पूछा है, अभी पूछताछ का। हाँ पूछ सकते हो उससे, अगर मैंने ज़बरदस्ती लाया तो मुझे ना कभी मत छोड़ो जेल से, मैं उम्र भर जाना चाहता हूँ, फिर मुझे ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है यार, 3 बच्चों की माँ के साथ को लेकर आप भागे? आपको मालूम आपका निकाह नहीं है, आपको मालूम है कि अगर आपने उसको गलत तरीके से हाथ भी लगाया होगा तो वो जिना के बराबर है। इस्लाम क्या कहता है, तो कुरान क्या कहता है? मुसलमान नहीं हो, नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, तो फिर तुम्हारे अंदर में इंसानियत नहीं है, मुसलमानियत की नाम की चीज़ नहीं है। तुम एक गैर महरम लड़की को लेके आ रहे हो, गैर महरम लड़की को लेके आ रहे हो, 3 बच्चों की माँ को, और तुम ला के उसको बोल रहे हो इश्क मशूकी है। कुरान हदीस इस्लाम क्या कहता है? किसी की गैर बच्ची की तरफ आंख उठा के देखना वो भी जिना के बराबर है। और तुम 2 दिन से लड़की को अपने साथ रख रहे हो, वो क्या है? वो क्या कुरान और इस्लाम और हदीस के हवाले से भी नहीं है? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? जी मुसलमान हूँ। तो फिर क्या ये चीज़ गलत नहीं है? इंसानियत नहीं है? हाँ तुम बातें बहुत ज़्यादा करने लग गए हो, तुम्हारे कौन से इश्क है? तुम्हारे इश्क का भूत निकाल देंगे निकालने वाले। तुम किसी की बीवी को लेके आए हो, वो गैर महरम है, और तुम उसको अगर उससे बात कर रहे हो तो वो भी गुनाह है। क्या इस्लाम कुरान हदीस नहीं पढ़ी तुमने? तुम्हें नहीं मालूम कि ये तुम गुनाह कर रहे हो, अल्लाह की ज़ात को नाराज़ कर रहे हो? एक गरीब इंसान का घर उजाड़ रहे हो, उसके 3 बच्चे हैं, ये कौन सा इश्क है भाई? मैं उसका घर कौन सा इश्क है? ये किस तरीके का इश्क है तुम्हारा? इसका घर थोड़ी उजाड़ना चाहता हूँ। ये किस तरीके का इश्क है तुम्हारा कि ये बंदा जो है ये गरीब इंसान है, मजलूम है, इसके 3 बच्चे हैं, और तुम बोल रहे हो मैं इश्क कर रहा हूँ, इश्क कर रहा हूँ 15 साल से? लानत है तुम्हारे इश्क को। कम से कम इंसानियत है, मुसलमानियत किसी चीज़ का नाम है। दीन इस्लाम कुरान पढ़ा है ना, नमाज़ पढ़ी है ना, हदीस में लिखा हुआ है ना, तो क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम्हारे घर पे माँ बहनें नहीं है? क्या हम माँ बहनों के पेट से पैदा नहीं हुए? ये कौन सा इश्क है? इसकी ज़िंदगी तुमने तबाह करके रख दी। एक तो 3 बच्चे तुम उसके लेके कश्मीर से, उसके बच्चों का इम्तिहान है, वो रो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे, बच्चे उसके भूखे पेट है, पुलिस भी साथ में घूम रही है, तुम्हें हथकड़ियाँ डाली और तुम इश्क कमा रहे हो। तुम्हें कोई और शादी करने के लिए लड़की नहीं मिली पूरे जम्मू कश्मीर में? जो 15 साल से तुम इश्क कर रहे हो उसके साथ। इंसानियत करो यार, इंसानियत करो, कम से कम एक इंसान के हैसियत से इंसान बनो। समाज में सबसे बड़ी बात होती है इंसानियत। हमें भी दुख होता है ये चीज़ें दिखाने में, लेकिन कम से कम इंसानियत बड़ी चीज़ है। हम सर आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बीवी को समझाएं आराम से, आप उसको बताएं कि वो गलत कर रहे हैं। इसको दबाव डाला है सर। नहीं, कोई किसी को दबाव नहीं डाल सकता। सुनो, ऐसा भी बताया होगा, सुनो, कोई नहीं दबाव डाल सकता है। लड़की अपनी मर्जी से निकली होगी, जो बात सच है वो सच होती है। जो गलती उसने की, हमने उसको कहा कि तुम गलत हो। जहाँ पे तुम गलत हो कि भाई साहब हम तुम्हें कहेंगे कि तुम गलत है ना? तुम अपनी बीवी को समझाओ, उसको दीन और इस्लाम की तालीम दो, उसको बताओ क्या गलत है क्या सही है। 3 बच्चे हैं, वो अपने तुम्हारे साले हैं, ससुर है, वो क्या बोल रहे हैं?
वो हमारे साथ है इसमें, पुलिस के साथ है। हम जैसे हमने कार्रवाई शुरू की वो हमारे साथ निकले हैं। उनको भी पता है, पड़ोसी सब मेरे साथ है, गाँव वाले सब मेरे साथ है। अगर मेरे गलत होता थोड़ा बहुत तो वो बता देंगे ये बंदा ठीक नहीं है, इसलिए ये गलत है। आप लोग मेरे को 30 साल हुए पूरे मतलब फील्ड में, चलो मैंने किसी की माँ को बुरी नज़र से नहीं देखा है। चलो जी, अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा। घर में जाता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, बिजली का काम करता हूँ। मुझे पता है यार, मैं आपकी हालत को देख के मुझे रोना आ रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो बाकी ये रही बात। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुपवारा पुलिस का बहुत शुक्रिया है, SSP कुपवारा साहब को जो है वो मुबारकबाद है, और DSP साहब को भी, आपको भी, और आपकी ईमानदारी को भी। सर क्या बिगाड़ा इसका सर? क्यों रो रहे हो आप? मेरे भाई हो यार, रोने वाली कौन सी बात है? अगर 14 साल हुआ है हमारी शादी को, 13 साल, बीच में 1 साल का गैप रहा है। जब बात की इनके घर वालों से, मुझे पता तो है यार, इसको फोन करना था ना, आप विक्टिम हो, आपका कोई कसूर करना नहीं था। है। आप निकाह मत कोई बात करो। नहीं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। चलो जी, बहुत बहुत क्या गलती है? नहीं, मैं मान ये जो सकता हूँ, बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं टूटी फूटी बातें बोल रहा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं इस्लाम आपकी है? ये तकलीफ को समझ सकता फिर हूँ। क्या फायदा है दाढ़ी रखने का? बिल्कुल हकीकत है। चलिए जी, आप इस खबर को जो है वो अपने लोगों तक पहुँचाएं जिन्होंने कल से मदद की थी इस मामले में, और हम इस भाई के साथ हैं। आप रोए मत, अल्लाह ताला आपका भी है, अल्लाह इसका भी है, अल्लाह मेरा भी है। उसी अल्लाह की अदालत में ये केस छोड़ दो। खानदान सर परेशान कर दिया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। बर्बाद कर दिया सर। 3 बच्चे हैं मेरे पड़ोसी, मैं क्या जवाब अल्लाह दूंगा ताला इन इससे पड़ोसी हिसाब लेगा, रोज़े महशर में से हिसाब लेगा, यही तो याद सर। रखना। सर, जो उसने आपकी गलत किया गवाह से है, हिसाब होगा। गवाह है इसके। मैं रोज़े कुछ नहीं महशर में कहूँगा। इसका जवाब होगा ज़रूर। और मैं पुलिस से भी मौतमाना गुजारिश करूंगा, कुपवाड़ा के SSP साहब से, DSP साहब से, बाकी मुलाजमीन से कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और जो रियलिटी है उसे सामने लाया जाए। छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।